with the next topic, that is subsets. Okay, so what is subset, right? We will just try to go through the definition first. A set A is said to be subset of B if every element of A is in B. Okay, what it is trying to say is, suppose for example A is having some element, right, and B is having, right, now every element of A is present in B, right? That means A is a subset of B. Okay, but is every element of B present in A, right? Just check. 1 2 is present but 3 4 is not present, so B is not subset of A. Simple. So basically what is the criteria? The first set who is coming, right, there every element should be present in the another set, then it is like this. Now for example, if you say A is x, x belongs to natural number, x is even, ठीक है, and B is what, x, x belongs to n, that's it. Okay, A means what, it is the even numbers, 2 4 6 dot 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 everything, it will go on A. Now B means what, 1 2 3 4 5 dot dot dot, because it's a natural number, right? Now 2 is present, 4 is present, 6 is present. Similarly, everything will be present in B. So that's why here every element of A is present in B. That's why it is called as A is subset of B. But 1 is not present in A, right? That means B is not subset of A in this case. Okay. So subset definition is every element of that particular set needs to be present in the another element. Okay. Then that particular element can be called the subset of the other element. That's it. That's a very simple definition of subsets. Okay. Now let's consider some of the questions which is given in example. ये क्या बोला गया है ये देख लेते हैं. यहाँ पे क्या बोला गया, consider the sets. Okay. This is empty set and this is A 1 2 or 1 3, B 159, C 13579. Okay. Now empty. This is null set, right? This means what? Empty sets or null set, you can say. Empty set. Empty set will always be subset of something. B का element क्या क्या है? 159. But it will be subset. Okay. Empty set will always be subset of any other element or any other sets. याद रखना ये बात, ठीक है? This is property. मतलब empty set सबका subset रहेगा. ओके. A इज अ सबसेट ऑफ बी, देख लो. A में क्या है, 1 और 3 है. 1 ऑब्वियसली अवेलेबल है बट 3 इज नॉट अवेलेबल हियर, राइट? 3 इज नॉट अवेलेबल हियर, दैट मीन्स A इज नॉट द सबसेट. कट. सबसेट का सिंबल एंड देन कट. ओके. नाउ A इज अ सबसेट ऑफ C दिखा हुआ है. A 1 है, 1 है, 3 है, 3 है. यस, both of the elements are present here, right? That means every element of A is present in C. That's why it is A is a subset of C. Okay. Similarly B is a element of B is a subset of C बोला हुआ है. 1 है 5 है 5 भी है, 9 है 9 है. That means what? ये भी सबसेट है. B is also subset of C. Okay. तो सबसेट का डेफिनेशन वेरी सिंपल है. सबसेट का डेफिनेशन वेरी सिंपल है. एवरी एलिमेंट ऑफ A should be in B. That's it. वेरी सिंपल. ओके. अभी नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट में क्या हुआ है थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. इसमें इसमें लिखा हुआ है कि इंटरवल ऑफ सबसेट्स, राइट? इंटरवल ऑफ सबसेट्स ऑफ आर रियल नंबर. आर मतलब रियल नंबर हियर. ओके. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल. सो ओपन इंटरवल का मतलब कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल का मतलब है कि डेट पर्टिकुलर एक्सट्रीम नंबर्स आर नॉट नॉट इंक्लूडेड. अगर मैं बोलूंगा 1 और 2, सॉरी 1 और 4, ओके, डेट मीन्स ये नंबर लाइन में जो होगा रियल नंबर लाइन में, राइट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, right? This particular number 4 or 1 is not inclusive, only 2 and 3 are included. Okay, till just before reaching this particular point all the real numbers are included. Okay, this is open ended. इसको इसीलिए ओपन इंटरवल बोलते हैं. ठीक है. 1 और 4 एक्चुअली में यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. दैट मीन्स इसको ऐसा लिखेगा, x greater than 1 greater than 4.
स्मॉलर देन 4, राइट? दिस इज द लॉजिक. तो ये अगर ऐसा लॉजिक हुआ देन इट इज ओपन इंटरवल, राइट? नाउ क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो? क्लोज इंटरवल ऐसा लिखा रहता है 1 और 4. इसका मतलब ये है कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 4. ठीक है. बेसिकली इसमें क्या हुआ कि 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है. ये जो नंबर लाइन आपका बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपका लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, राइट? दिस हाउ इट इज. फुल इंक्लूडेड है. वहां पे वो इंक्लूडेड नहीं था. जस्ट बिफोर रीचिंग हियर इट्स गेटिंग क्लोज. ओके. सो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल समझ आ गया. हाँ, कभी कभार ऐसे भी लिखा सकता है 1 4. इसका मतलब क्या है? 4 इंक्लूडेड है. तो इसको x की प्रॉपर्टी में ऐसा लिखेगा 1 इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन इक्वल टू 4. दैट मीन्स यहाँ पे 4 इंक्लूडेड है, राइट? सिमिलरली उल्टा साइड का भी हो सकता है 1 4, मतलब लेफ्ट साइड क्लोज एंड राइट साइड ओपन, राइट? तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4. तो बस यही है. जस्ट डिनोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं. ओपन और क्लोज इंटरवल का मतलब आपको अभी समझ आ गया होगा, राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? डेट इज यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए यूनिवर्सल सेट इज ए सेट दैट कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स that or the objects or elements being discussed in the given context. एक कॉन्टेक्स्ट में जो भी डिस्कस किया जाएगा, अगर उसका सारे के सारे एलिमेंट उसमें अवेलेबल हो, दैट इज यूनिवर्सल सेट. ओके. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं बोलूं, ठीक है, एक 3 सेट दिया हुआ है, एक एन करके सेट दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 नेचुरल नंबर जाएगा, ठीक है? अभी ए इज इक्वल टू इवन नंबर, सपोज 3 4, ठीक है? बी इज इक्वल टू ऑड नंबर, ठीक है? पी इज इक्वल टू पी इज पी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल 2 3 5 डॉट डॉट डॉट. अभी ये देखो, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में क्या है ना, कि ये जो n है, ये जो n है आपका, ये n में a का वैल्यू भी है 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली है. और उसके साथ साथ b का भी है, सॉरी 2 2 3 4 भी है इसमें, मतलब इवन नंबर वाले सारे अवेलेबल है. b का एलिमेंट सारे अवेलेबल है. इधर क्या है अवेलेबल? 1 3 5 सारे अवेलेबल है. प्राइम नंबर भी सारे अवेलेबल है नेचुरल नंबर में, 2 3 5 6 7. तो बेसिकली इस पूरे केस में क्या आपको कौन सा यूनिवर्सल सेट है? n इज द यूनिवर्सल सेट इस कॉन्टेक्स्ट में, राइट? n इज द यूनिवर्सल सेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. आई होप आपको ये समझ आई होगी, राइट? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब, यूनिवर्सल सेट को हम लोग वेन डायग्राम अगर बनाएंगे आगे जो आप पढ़ोगे, तो इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर करके डिनोट करते हैं. दिस इज u, ठीक है? अब इवन नंबर हो गया अलग, ऑड नंबर हो गया अलग, राइट? दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, राइट? बट जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो है, ये इसको इंटरसेक्ट करेगा. तो बेसिकली बट लेकिन सारे का सारा एलिमेंट बाहर वाले में है, राइट? दैट इज एन. सारे एलिमेंट इधर प्रेजेंट है. तो ये जो बहुत डब्बा, बड़ा डब्बा हो गया, ये हो गया आपका एन, दैट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? वेरी सिंपल. अभी एक दो और केसेस देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट का, एकदम बढ़िया सा जो हमने पढ़ा था पहले ही दिन में. दैट इज, हमने क्या पढ़ा था बताओ? पहला दिन में नंबर सिस्टम पढ़े थे, राइट? नंबर सिस्टम पढ़े थे. तो सबसे पहला नंबर सिस्टम क्या था? नेचुरल. नेचुरल सिस्टम, नेचुरल. उसके बाद नंबर, एक सेकंड, एक बार मैं बढ़िया से इसको लिख लेता हूँ. नंबर सिस्टम्स पढ़े थे, राइट, हम लोग? तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताने जाने वाला हूँ, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है? 1 2 डॉट डॉट डॉट. होल नंबर 0 1 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना? उसके बाद इंटीजर पढ़े थे हम लोगों ने. इंटीजर पढ़े थे हम लोग, अरे यार, सॉरी बॉयस. तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इंटीजर. इंटीजर में क्या है? माइनस भी जाएगा इधर, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 0 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? और उसके बाद बताओ, उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं इसको, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर, राइट?
रैशनल को क्यू से डिनोट कर लेते हैं अभी के लिए। रैशनल में क्या पढ़े थे? क्यू। उसमें क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा रहता है, 1/2, ऐसा ऐसा, 1, 2, 3/2, ऐसा, मतलब कुछ भी हो सकता है राइट, इधर भी लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है राइट। रैशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़े थे हम लोग, राइट। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? रूट वाले, √2, √3, राइट, डॉट 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 चलते रहेगा, माइनस में भी जाएगा ये। अब उसके साथ साथ और एक क्या पढ़े थे हम लोग? रियल नंबर। रियल नंबर क्या हुआ करता था? रियल नंबर सब कुछ, रैशनल प्लस रियल, नॉट रियल ब्रो, रैशनल प्लस इरेशनल, राइट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे सबसेट वाला कंसेप्ट भी मैं समझा देता हूँ। अभी एन डब्ल्यू का सबसेट है, राइट। एन डब्ल्यू का सबसेट है क्योंकि एन के सारे मैंने प्रेजेंट है एक्सेप्ट द होल, क्या बोलते हैं, होल नंबर एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, 0। सेम होल नंबर का सारा चीज कहाँ पे प्रेजेंट है? जेड में प्रेजेंट है, इंटीजर में। तो डेट मीन्स ये जेड का भी सबसेट है, ठीक है। सेम रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के सारे वैल्यूज इसमें भी प्रेजेंट होगा, तो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। इरेशनल नंबर डजंट मेक सेंस इन, ये किसी का, यहाँ पे किसी का सबसेट वगैरह नहीं है, ये तीनों में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इरेशनल नंबर ये तीनों में, ये सब में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। लेकिन इन सब का जो क्यू वाले जो पार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब आपका इधर ये सबसेट हो गया, राइट। क्यू इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर हो गया अभी, ठीक है। एंड इरेशनल, इरेशनल इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। सो इस पूरे केस में आपका सबसेट वाला कंसेप्ट भी समझ आ गया। अब यूनिवर्सल कंसेप्ट कौन हो गया? यूनिवर्सल में क्या हो गया? सब कुछ अवेलेबल किस में है? आर में है, राइट। सो आर इज यूनिवर्सल इन द नंबर सिस्टम, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। आई होप ये इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, ठीक है। तो आर इज द यूनिवर्सल सेट इन नंबर सिस्टम, और ये जो सबसेट वाला कंसेप्ट है ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर इसका सबसेट है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर रैशनल का सबसेट है, रैशनल रियल नंबर का सबसेट है, एंड इरेशनल इज ऑल्सो रियल नंबर का सबसेट, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका वेन डायग्राम भी मैं बना के दिखा सकता हूँ। वेन डायग्राम ऑब्वियसली हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट आई विल जस्ट रफली मेक इट फॉर यू गाइस, ठीक है। ये डब्बा आपका क्या हो गया? रियल नंबर। सबसे पहले क्या आता है आपका? एन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के ऊपर क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर का सारे नंबर्स एन में भी प्रेजेंट है, राइट। उसके ऊपर क्या आता है? जेड, जेड इंटीजर, राइट। इंटीजर के ऊपर क्या आता है? रैशनल नंबर। ये मतलब रैशनल नंबर में सारे ऐसा सब कुछ प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद क्या प्रेजेंट है? इरेशनल नंबर अलग है, इरेशनल नंबर अलग है। तो देखो, ये सारे के सारे जितने भी आपने वेन डायग्राम में ये जो सिंबल बनाया, ये सारे का सारे जिसमें किस में प्रेजेंट है? आर में प्रेजेंट है, रियल नंबर में प्रेजेंट है। तो डेट्स वाई रियल नंबर इज द यू, यूनिवर्सल सेट। इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट वेन डायग्राम प्रॉपरली, बट राइट नाउ हम सिर्फ ये कंसेप्ट समझ रहे थे। कूल, वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज नाउ। थैंक यू।